کیا آپ نے کبھی ایسا منظر سوچا ہے جہاں سمندر گرج رہا ہو، لہریں دیواروں کی طرح اٹھ رہی ہوں، جہاں بڑے بڑے جہاز بھی کانپ جائیں، لیکن اسی سمندر کے بیچ ایک جگہ ایسی ہو جو نہ جھکے نہ ڈوبے، بس خاموشی سے کھڑی رہے؟ یہی کہانی ہے حاجی علی درگاہ کی۔ ذرا آنکھیں بند کیجیے، سوچیے، سامنے پھیلا ہوا عرب ساگر، تیز ہوا چل رہی ہے، لہریں بار بار کنارے سے ٹکرا رہی ہیں، اور اسی سمندر کے بیچ ایک سفید سی عمارت خاموشی سے کھڑی ہے۔ نہ ڈر نہ ہلچل، بس سکون۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں، یہ وہی درگاہ ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہاں سمندر بھی حد پار نہیں کرتا۔ ممبئی کے ورلی علاقے کے پاس سمندر کے بیچ ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے، اسی ٹاپو پر بنی ہے یہ درگاہ۔ وہاں پہنچنے کا راستہ بھی عجیب ہے، قریب آدھا کلومیٹر لمبا ایک پتلا سا راستہ، لیکن یہ راستہ ہر وقت نہیں دکھتا۔ جب پانی بڑھتا ہے تو پورا راستہ سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اور جب پانی اترتا ہے تو وہی راستہ پھر سامنے آ جاتا ہے۔ پہلی بار جو انسان اسے دیکھتا ہے اس کے دل میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے، آخر یہ ممکن کیسے ہے؟ سمندر کے بیچ، لہروں کے بیچ، طوفانوں کے بیچ ایک عمارت صدیوں سے کھڑی کیسے ہے؟ یہ درگاہ آج کی نہیں ہے، قریب 600 سال پرانی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کا نرمان سن 1441 کے آس پاس ہوا، اور یہ درگاہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار۔ لیکن یہاں سے اصلی کہانی شروع ہوتی ہے۔ کون تھے یہ بزرگ؟ کیسے پہنچے سمندر کے بیچ؟ اور کیوں آج تک لوگ انہیں یاد کرتے ہیں؟ کیا صرف ایک عمارت کی وجہ سے، یا اس کے پیچھے کوئی گہری بات چھپی ہے؟ کہانی آگے بڑھے گی اور ہر قدم پر ایک نیا راز کھلتا جائے گا۔ سمندر کی لہریں اب بھی کنارے سے ٹکرا رہی ہیں، ہوا میں ہلکی سی نمی ہے، اور اسی خاموشی میں کہانی ہمیں پیچھے لے جاتی ہے، بہت دور، ہندوستان سے بھی دور۔ ایک شہر تھا بخارا، یہیں پیدا ہوئے تھے حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، بہت بڑے تاجر، دولت، کاروبار، آرام، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن دل میں ایک خالی پن تھا، ایسا خالی پن جو نہ سونے سے بھرتا ہے نہ دولت سے۔ ایک دن ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، لیکن وہی واقعہ ان کی پوری زندگی بدل گیا۔ انہوں نے ایک غریب عورت کو دیکھا، وہ رو رہی تھی، اس کا تیل زمین پر گر گیا تھا، اور وہ ڈر رہی تھی کہ اس کا شوہر اسے مارے گا۔ ذرا سوچئے، ایک چھوٹا سا حادثہ، لیکن اس عورت کے لیے پوری دنیا جیسا ڈر۔ یہ دیکھ کر حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے زمین میں اپنی انگلی ڈالی، اور روایت میں آتا ہے کہ زمین سے تیل نکل آیا اور اس عورت کا برتن بھر گیا۔ یہ منظر جتنا حیران کرنے والا تھا اتنا ہی سوچنے والا بھی۔ ایک سوال اٹھتا ہے، کیا یہ مدد تھی، یا اس کے پیچھے کوئی اور بات چھپی تھی؟ کچھ ہی وقت بعد ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی شروع ہوئی۔ انہیں لگا شاید انہوں نے زمین کو تکلیف پہنچائی ہے، شاید انہوں نے کچھ ایسا کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہیں سے ان کی زندگی نے کروٹ لی۔ انہوں نے فیصلہ کیا، دولت چھوڑ دیں گے، آرام چھوڑ دیں گے، سب کچھ چھوڑ دیں گے، اور صرف اللہ کا راستہ چنیں گے۔ سوچئے، جس انسان کے پاس سب کچھ ہو، وہ خود اپنے ہاتھوں سے سب کچھ چھوڑ دے، یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے یہی کیا۔ انہوں نے اپنی ساری دولت چھوڑ دی اور فقیری زندگی اپنا لی۔ پھر انہوں نے حج کیا، اور یہیں سے ان کے نام کے ساتھ حاجی جڑ گیا۔ اب ان کا سفر شروع ہوا، ایک ایسا سفر جس میں نہ منزل صاف تھی نہ راستہ آسان، بس ایک مقصد تھا، اللہ کی رضا۔ وہ الگ الگ علاقوں میں گئے، لوگوں سے ملے، ان کی مدد کی، اور دھیرے دھیرے ان کا سفر انہیں ہندوستان کی طرف لے آیا۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے، اتنا بڑا تاجر سب کچھ چھوڑ کر آخر سمندر کے اس چھوٹے سے ٹاپو تک کیسے پہنچا؟ اور وہاں کیا ہوا جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے وہیں روک دیا؟ کہانی اب اور گہری ہونے والی ہے۔ ہوا اب تھوڑی اور تیز ہو گئی ہے، لہروں کی آواز اور گہری لگ رہی ہے، اور کہانی اب ہمیں لے آتی ہے ہندوستان کی طرف۔ اس وقت ممبئی آج جیسا روشن شہر نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے ٹاپو، مچھواروں کی بستیاں، اور چاروں طرف صرف سمندر۔ اسی خاموش ماحول میں حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے۔ انہوں نے کوئی محل نہیں بنایا، کوئی دولت اکٹھا نہیں کی، بس ایک سادہ زندگی، عبادت اور لوگوں کی خدمت۔ وہ لوگوں کو سمجھاتے، مدد کرتے، دھیرے دھیرے لوگوں کے دل
उनकी तरफ खींचने लगे। दूर दूर से लोग आने लगे, कोई मसला लेकर, कोई दुख लेकर, कोई सिर्फ मिलने के लिए। लोग उन्हें एक बुजुर्ग, एक वली, एक दरवेश की तरह देखने लगे। लेकिन उनकी जिंदगी में न दिखावा था, न कोई शोर, बस सादगी। और यही सादगी लोगों के दिलों में उतरती चली गई। कहते हैं उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा यहीं गुजारा, लोगों को दीन की बातें बताते रहे। और फिर एक दिन वो वक्त आ गया जिससे कोई नहीं बच सकता। जब उनका आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने चाहने वालों से एक अजीब सी बात कही, ऐसी बात जो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने कहा, मुझे जमीन में दफन मत करना, मेरे कफन को समंदर में छोड़ देना, और जहां अल्लाह के हुक्म से मेरा कफन किनारे लगे वहीं मेरी कब्र बनाना। सोचिए, एक इंसान जो अपने जाने के बाद भी अपना फैसला खुद नहीं करता, बल्कि अपना पूरा मामला अल्लाह के हवाले कर देता है। ये सिर्फ एक वसीयत नहीं थी, ये एक भरोसा था, अल्लाह पर पूरा भरोसा। उनके चाहने वाले हैरान भी थे, लेकिन मोहब्बत इतनी थी कि उन्होंने उनकी बात मान ली। उनके इंतकाल के बाद उनका ताबूत समंदर में छोड़ दिया गया। अब हर किसी की नज़र उसी ताबूत पर थी। लहरें उसे उठाती, नीचे गिराती, कभी आगे कभी पीछे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। ताबूत तैरता हुआ आकर रुक गया, ठीक उसी जगह जहां आज हाजी अली दरगाह मौजूद है। ये कोई इत्तेफाक था या इसमें कोई इशारा छुपा था? यही वो पल था जहां से इस जगह की अहमियत शुरू हुई। बाद में यही उनकी मज़ार बनाई गई, समंदर के बीच चट्टानों पर। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। असल हैरानी तो अब शुरू होती है, कैसे ये दरगाह तूफानों के बीच भी खड़ी रहती है, और क्यों लोग इसे सिर्फ इमारत नहीं बल्कि करामात कहते हैं। आगे हम इन सवालों के जवाब तलाश करेंगे। समंदर अब भी वही है, लहरें अब भी उठती हैं, हवा अब भी तेज चलती है, लेकिन एक चीज़ है जो सदियों से नहीं बदली, वो है हाजी अली दरगाह। अब जरा गौर से देखिए, चारों तरफ खारा पानी, तेज हवाएं, ऊंची लहरें, और इनके बीच एक दरगाह जो आज भी अपनी जगह खड़ी है। सवाल यहीं से शुरू होता है, आखिर ऐसा कैसे? इतने साल, इतने तूफान, इतनी लहरें, फिर भी ये इमारत गिरी क्यों नहीं? कुछ लोग कहते हैं ये करामात है, और कुछ लोग कहते हैं इसके पीछे वजह है। दरअसल ये दरगाह रेत पर नहीं बनी, बल्कि मजबूत चट्टानों पर खड़ी है, और इसका फर्श आसपास के रास्ते से थोड़ा ऊंचा है। यही वजह है जब समंदर का पानी बढ़ता है तो रास्ता डूब जाता है, लेकिन दरगाह के अंदर पानी नहीं पहुंचता। कई बार ऐसा होता है, पूरा रास्ता गायब, चारों तरफ सिर्फ पानी, और दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे दरगाह पानी के ऊपर तैर रही हो। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? क्या सिर्फ पत्थर और ऊंचाई इतने सालों का सामना कर सकती है? यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि इस दरगाह के साथ सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि बहुत सारे किस्से भी जुड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह अपने नेक बंदों के वसीले से उनकी दुआ कबूल फरमा देता है। कुछ कहते हैं यहाँ आकर अल्लाह ने अपने नेक बंदे के वसीले से उनकी ज़िंदगी बदल दी। कुछ कहते हैं यहाँ उन्हें ऐसा सुकून मिला जैसे अल्लाह की रहमत इस जगह पर ख़ास तौर से उतरती हो। और कुछ लोग ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें सुनकर इंसान सोच में पड़ जाए। मुंबई के पुराने लोगों के बीच एक किस्सा बहुत मशहूर है। पहले जब लोग नाव से दरगाह के पास आते थे, कई बार समंदर बहुत तेज हो जाता था, लहरें ऊंची उठती थीं, लेकिन लोग कहते थे जैसे ही नाव दरगाह के करीब पहुंचती, लहरें थोड़ी शांत हो जाती थीं। एक और बात जो बहुत लोग बताते हैं, जब मुंबई में तेज बारिश होती है, कई जगह पानी भर जाता है, लेकिन दरगाह के अंदर पानी जमा नहीं होता। क्यों? क्योंकि दरगाह का फर्श ऊंचा है और पानी नीचे ही रह जाता है। लेकिन इन सब बातों से भी ज्यादा एक चीज है जो इस जगह को खास बनाती है। यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं आते, हर धर्म के लोग आते हैं, कोई दुआ लेकर, कोई उम्मीद लेकर, कोई सिर्फ देखने के लिए। और जब वो उस रास्ते पर चलते हैं तो सब एक जैसे हो जाते हैं, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, बस इंसान। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि असली असर अभी बाकी है, वो असर जो दिल के अंदर होता है और जो इंसान को बदल देता है। आगे हम उसी असर और उन किस्सों की तरफ बढ़ेंगे। समंदर का रास्ता फिर सामने है, दोनों तरफ पानी, हवा में नमी
और दूर सफ़ेद सी दरगाह दिखाई दे रही है। हर कदम के साथ दिल थोड़ा और खामोश होता जाता है। ये वही जगह है जहाँ लोग कुछ लेने नहीं बल्कि बहुत कुछ छोड़ने आते हैं। हाजी अली दरगाह। मुंबई एक ऐसा शहर जहाँ हर रोज़ हज़ारों लोग आते हैं, कोई पैसा कमाने, कोई नाम कमाने, कोई अपनी ज़िंदगी बनाने। लेकिन उसी शहर में एक जगह ऐसी भी है जहाँ लोग अपनी परेशानी छोड़ने आते हैं, अपना गम छोड़ने आते हैं, अपना दर्द छोड़ने आते हैं। कहते हैं कुछ जगह देखने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती है। पुराने लोगों के बीच एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक आदमी रोज दरगाह आता था, चुपचाप मज़ार के पास बैठता और फिर चला जाता। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, वो रोज आता रहा। एक दिन किसी ने उससे पूछ ही लिया, तुम रोज यहाँ क्यों आते हो? उसने जो जवाब दिया वो दिल को छू लेने वाला था। उसने कहा, मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आता, मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ बैठकर मुझे लगता है मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ज़रा सोचिए, क्या यही असली सुकून नहीं है? शायद यही वजह है कि लोग बार बार यहाँ आते हैं। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस एक सुकून। यहाँ एक और अजीब सी बात है, जब लोग उस रास्ते पर चलते हैं तो कोई नहीं पूछता कौन किस मजहब से है। कोई मंदिर से आता है, कोई मस्जिद से, कोई गिरजाघर से। लेकिन जब सब उस रास्ते पर होते हैं तो सब एक जैसे हो जाते हैं। सब पैदल चलते हैं, सब लहरों के बीच चलते हैं, सब उसी दरगाह की तरफ बढ़ते हैं। ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, बस इंसान। और शायद यही इस जगह की सबसे बड़ी पहचान है। जब आप उस रास्ते पर चलते हैं तो दोनों तरफ समंदर होता है, हवा तेज चलती है, लहरों की आवाज़ आती है और सामने वही सफ़ेद दरगाह। उस पल इंसान कुछ देर के लिए अपनी पूरी दुनिया भूल जाता है। बहुत से लोग कहते हैं हाजी अली दरगाह की सबसे बड़ी करामात ये इमारत नहीं है, बल्कि ये है कि यहाँ आकर इंसान बदल जाता है। लेकिन क्या यही इस कहानी का आखिरी सच है, या इसके पीछे कोई और गहरी बात छुपी है? अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, जहाँ हमें मिलेगा इस पूरी दास्तान का असली मतलब। समंदर अब भी वही है, लहरें आती हैं और लौट जाती हैं, हवा चलती है, वक्त गुजरता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो नहीं बदलती। उनमें से एक है हाजी अली दरगाह। ज़रा ठहर कर सोचिए, कितने तूफान आए होंगे, कितनी लहरें टकराई होंगी, रास्ता कई बार टूटा, कई बार डूबा, फिर बना, लेकिन दरगाह आज भी वही खड़ी है। लोग कहते हैं यही करामात है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो शायद असली करामात कुछ और है। सोचिए, एक इंसान जिसके पास दौलत थी, आराम था, सब कुछ था, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, सादगी चुनी, लोगों की मदद की, अल्लाह का रास्ता चुना। और आज सदियों बाद भी लोग उसे याद करते हैं, उसकी मज़ार पर आते हैं, उनके वसीले से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया में कितने बादशाह आए, कितने अमीर लोग आए, उनके महल थे, उनकी ताकत थी, लेकिन आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं। और एक फ़कीर जो समंदर के किनारे रहा, आज 500 साल बाद भी लोग उसे याद करते हैं। ये सोचने वाली बात है। ये कहानी सिर्फ एक दरगाह की नहीं है, ये कहानी है एक सादगी की, ये कहानी है इंसानियत की, ये कहानी है यकीन की। और ये हमें सिखाती है, इंसान अपने पैसे से बड़ा नहीं होता, अपने कपड़ों से बड़ा नहीं होता, अपने घर से बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपने किरदार से, अपने दिल से और अपने काम से। शायद यही वजह है कि समंदर के बीच बनी हुई वो सफ़ेद दरगाह आज भी खड़ी है। लहरें आती हैं और चली जाती हैं, तूफान आते हैं और गुजर जाते हैं, शहर बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बदलती। और उनमें से एक है हाजी अली दरगाह, खामोश लेकिन बहुत कुछ कहती हुई। आखिर में एक बात याद रखिए, करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। बुजुर्ग अल्लाह के नेक बंदे होते हैं और अल्लाह की अता से मदद भी करते हैं, लेकिन असली ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होती है।